हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अड्डा। So today I have come up with one new topic, that is 3M. It is a basically lean manufacturing methodology. So बिना देरी किए we start to discuss कि what is 3M basically, what stand 3M stand for. So first M is मुदा, means waste और बेकार चीजें, and then third is second is मुरा, unevenness, मीन्स बैलेंसिंग ना हो किसी भी चीज की, कहीं कम कहीं ज्यादा, अनइवननेस। देन थर्ड इज मुरी, ओवरबर्डन, बोले तो बोझ, अत्यधिक वजन, हिसाब औकात से ज्यादा वजन। तो थोड़ा सा नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग session, what we will do, we will discuss like about the history, then what is all 3M and how to identify and how to keep remembering them easily. So all these things we will learn about step by step. So let's discuss about the history. So basically, 3M is considered a key concept of the Toyota production system. So the term is, I have already told you, Muda, Mura, Muri. So are not actually an innovation by Toyota. It was basically already were using by in Japanese martial art before than Toyota. So what does mean over there in martial art? Any excess movement in a fight is based, right? Means muda, since it tires the athletes and leaves him open for an attack. Similarly, any uneven or unnatural movement or thought or unnatural stance will delay your action. So that is Muri, Mura, and then finally trying to do too much at the same time or using the technique which you have not yet mastered it is overburden, right? So basically, if we say this 3M methodology copied from Japanese martial art by uh, basically ताइची ओनो, एक जापानीज इंजीनियर थे, उन्होंने ये कॉपी की थी। So let's discuss about further what is 3M basically. So first is muda. So muda means wasteful, useless or futility, which is contradicting the value addition. Now you may think what is value addition? So no worry, stay tuned. We will discuss about the value addition and non-value addition in upcoming slides, right? So then next is Mura. So Mura is inconsistency in business operation caused by either a lack of standard or when poor standard are followed. तो बेसिकली अनइवननेस हम कह सकते हैं, काम की सिमिलरिटी ना होना, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, इस तरीके से अनइवननेस। देन कम टू द मुरी। मुरी, in fact the picture is already explaining, self explanatory, you can see the overburden, औकात से ज्यादा वजन, right? So what is it? Muri overburden either in process, machinery or people. It can be anywhere, because process, people, machine, everyone have their own capacity. If you will give the give more work, more than capacity, then it will becomes a muri for that particular process or machine or people, right? So now discuss about the relationship between both muda, mura and muri. See, these are very interrelated. Eliminating one of them will affect another two, right? So we take an example. There is a firm that need to transport 8 ton of material to a customer, has several option, right? So what they choose, they took one truck which have capacity maximum 4 ton. मतलब एक ट्रक है जो 4 टन मैक्सिमम एज पर स्टैंडर्ड वेट ले जा सकता है, राइट? सो व्हाट हैपेंड हियर, one truck with all 8 ton, it would be considered as muri. Why? Because it become the overburden. Capacity 4 टन थी, आपने उसमें रख दिया 8 टन, सो ओवरबर्डन हो गया, औकात से ज्यादा हो गया उसके। तो दिस एक्सेस लोड कैन लीड टू द ब्रेक डाउन, राइट? तो ये मुरी का एग्जांपल हो गया। देन वी टॉक अबाउट द मुरा, अनइवननेस। यू कैन सी हियर द कैपेसिटी ऑफ वन ट्रक इज 4 टन, सो व्हाट दे हैव डिड हियर, in one two trip, one with 3 ton and another is with 5 ton. So here it is mura, unevenness is there. In one truck the weight is too much less, and in one truck weight is
too much more, right? So it is Mura, unevenness is there. Then you can see uh, on first trip delivery may be too little for the production. So what will happen, what will be the impact due to this Mira? Suppose this, ये एक ट्रक पहले पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या होगा, जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उससे कम मटेरियल पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 4 टन भेजना था, 3 टन जा रहा है, राइट? इन सेकंड ट्रिप व्हाट विल बी देयर, the amount of delivered material may be too much for on-site storage and material handling. This lead to muri since one of truck is overburden, right? ये ट्रक ओवरबर्डन भी है तो मुरी ऑटोमेटिकली हो गया इसमें। और एंड द रिसीवर इज आल्सो ओवरबर्डन। जब 4 टन के लिए रेडी है मेरा रिसीवर, वहां पे मैं 5 टन लेके जा रहा हूँ ट्रक में, तो जो मेरा रिसीवर है उस पर भी औकात से ज्यादा काम हो गया ना, उसको असाइंड है कि वो 1 घंटे में 4 टन उतारेगा। अब उसके पास 5 टन का ट्रक वहां पहुंच गया, तो उसको 1 घंटे में 5 टन उतारना है, तो वो ओवरबर्डन हो गया, राइट? एडिशनली मुदा कैन बी सीन फ्रॉम द अनइवन वर्कलोड, राइट? So then we talk about the third case, that is Muda. Now you will say ki how it is Muda. The material is keeping even in all the same in all the trucks. So see what they have did in each truck. The capacity is 4 ton, but what they have did, they have keep 2 ton in each truck. तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी कॉस्ट वो ज्यादा हो गई। क्यों? जो काम 2 ट्रक में हो सकता था वो हमारा 4 ट्रक में होगा। तो इनफैक्ट यहाँ मुरा और मुरी नहीं है, बट यहाँ मुदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 ट्रक एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा हूँ जो नहीं करने चाहिए, जो वेस्टेज है कंपनी के लिए, राइट? नाउ यू कैन सी द बेस्ट एग्जाम्पल और यू कैन सी द ऑप्टिमम। नाउ यू कैन सी total weight were 8 ton, each truck have one 4 ton capacity, so the company have used 2 truck only, 4 ton per truck. So that is what the best example of removal of all 3M, right? Truck are carrying the load at their maximum capacity, right? No excess capacity nor unnecessary trips. With this strategy, Murat does not exist because workload between the two deliveries is uniform. As a result, there is no unevenness, and finally, Muri is absent from this option because both the truck and operator are not working beyond their capacity. So, I hope ki you may get some idea about this, right? What is Muda and what is Mura and what is Muri, right? So now we will discuss about the Muda waste. कि है क्या ये? So basically, generally how often have you used? Generally, you use this kind of expression, that was a waste of time, or maybe that was a waste of money, or maybe that was a waste of effort. You use this kind of expressions, right? So what is it? Wasted time. Just imagine we could collect all our time together. What we have wasted so far in past. Can you imagine how much time would be wasted money? Just imagine if we collect all the money together that we have paid, wasted in past. Can you imagine how much would it be? Can't imagine, right? And for a wasted effort, just imagine if we could collect all the effort together that we have wasted in past. Can you imagine how much effect would be that would be? No, can't, right? So nobody forgot about past. Let's live in the present and think about the future. So come to the thinking how to eliminate the waste. Basically, these are the wastage: time, money, and effort due to this muda, right? So now we talk about the how to eliminate the waste. So what we can do to eliminate the waste? पहले पता होना चाहिए ना कि वेस्ट है क्या। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेस्ट, कि वो वेस्ट है भी या नहीं। उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद देन we can look at the ways of elimination, how we can eliminate or reduce this waste, right? So we have to basically identify what are the value added activity and what are the non value added activity. So we will discuss about value added activity are those activity or processes where customer is ready to pay money
any process. What is it? Any process that change the nature, shape or characteristic of the product in line with the customer requirement. ऐसे नहीं है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने कुछ ऐसे चेंजेस बना दिए जो कस्टमर को लाइक ही ना हो या इंटरेस्टेड ही ना हो कस्टमर उनको जान लेने में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, फिर वो वैल्यू एडिड फीचर नहीं है या वैल्यू एडिड एक्टिविटी नहीं है या वैल्यू एडिड ऑप्शन नहीं है, राइट, प्रोसेस नहीं है। तो ऐसा कोई चेंज प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, उसकी नेचर में, शेप में, करैक्टरिस्टिक्स में, कॉन्फ़िगरेशन में, किसी में भी जो मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो या मीट करता हो, जिसके लिए कस्टमर विलिंग टू पे हो, सो दैट काइंड ऑफ चेंज or activities will called as value added activities. So example, pressing, welding, heat treatment, all these are the manufacturing process, cutting, drilling, so these are very necessary. If you will not do this according to the design requirement, so that will directly impact to the customer and customer will be dissatisfied. In fact, there are 4 categories in this as well. Some kind of changes are those changes which is directly related to the customer will not buy. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार है, आप कार में व्हील ही मत दो तो कस्टमर लेगा ही नहीं। तो इस तरीके से चार कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है। जो एक वो जो नेसेसरी है, एक वो जो दे दोगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, एक वो जो दे दोगे तो होगा तो भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं है और नहीं होगा तो भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, और लास्ट वो जिसका कस्टमर को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, इवन कस्टमर उसको मे बी यूज भी ना करे ऑन डेली बेसिस। तो हमें देखना है कि हमें किस तरीके के वैल्यू एडिशन करने हैं, चाहे वो प्रोसेस हो चाहे प्रोडक्ट हो, राइट। देन what will be there at last if we will do this kind of activity, so there will be a huge profit, or we can say we can make a profit if we will do such kind of activity. Then come to the non value added activity. So these are those activities or processes where customer is not willing to pay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी क्या है, दो तरीके की बेसिकली है। तो वर्क कैरीड आउट विच इज नेसेसरी अंडर करंट कंडीशन बट डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्ट वैल्यू, right? Example, inspection, tool changes, maintenance. So these these are those activity which is making a loss. But यहाँ पे twist है, there is one interesting thing in non value added activity. There are two type of मुदा basically. It is a मुदा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे बिलिंग टू पे नहीं है, कस्टमर पे नहीं करेगा इसको, आपको आप लगाओ तो ना लगाओ तो। बट यहाँ पे भी दो कैटेगरी है, टाइप 1 और टाइप 2। Let's discuss about what is type 1 and what is type 2. So type 1 include those kind of non-value added activity in the process that are necessary for the end user. Non-value added तो है but वो necessary है। For example, inspection and safety testing. जो लोग बेसिकली इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो इंस्पेक्शन बेसिकली पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको चेक करने के लिए बोलते हैं। तो इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी टेस्टिंग डज नॉट डायरेक्टली ऐड वैल्यू। कस्टमर को तुम करो इंस्पेक्शन मत करो, सेफ्टी टेस्टिंग करो मत करो, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ी डाल रहा है, वैल्यू थोड़ी ना देगा कस्टमर उसकी, उसको तो प्रोडक्ट ओके चाहिए। आप तो बिना इंस्पेक्शन करे दे दो या बिना सेफ्टी टेस्टिंग करे दे दो, हाँ अगर आपका प्रोडक्ट फेल पहुंचा तो जरूर उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो तो क्या है, डिससेटिस्फाई तो कर नहीं सकते, आपको पे भी नहीं करेगा कस्टमर। तो क्या है, ये बेसिकली नेसेसरी हो जाती है एक्टिविटीज टू इंश्योर अ सेफ प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मुदा कॉल्ड नॉन वैल्यू एडेड बट एसेंशियल। मतलब नॉन वैल्यू एडेड है, आपको पता है, बट यू कैन नॉट रिमूव दैम। व्हाई? बिकॉज इट विल डायरेक्टली मेक द कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम उससे सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं प्रोडक्ट की कस्टमर के पास पहुंचने तक, राइट। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड बिजनेस वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। ये इनको हम नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी कह सकते हैं और बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन से इन मोदा टाइप 1
नॉन वैल्यूडेड तो है बट नेसेसरी है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। इफ वी विल रिमूव, नो मैटर कस्टमर इज विलिंग टू पे और नॉट, बट वी कैन नॉट रिमूव बिकॉज it will directly impact to the customer, so it is important to the process. Now we talk about the type 2. So type 2 include non value added activities in the process. These activities are unnecessary for the customer. As a result, मुदा type 2 should be eliminated. ये कस्टमर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं बना रही है सिवाय आपके मनी, टाइम और एफर्ट वेस्ट करने के। टाइप 2 वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है, तो ये रिमूव होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी चाहिए प्रोसेस से। सो व्हाट इज इट बेसिकली, इनको स्टार्टिंग में बेसिकली 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था मुदा टाइप 2 को। सो व्हाट इज इट, द एब्रिविएशन इज टिम्बो। So the 7 waste are transport, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, and defects. Right? So these are the 7 waste of the lean. So 7 waste of the lean were originally categorized by Taichi Ono. He was industrial engineer in Toyota manufacturing. Right? One of the father of the Toyota production system. He separated the waste. He saw into 7 categories. इसने क्या किया, जो टोटल बेस थे उनको बेसिकली 7 कैटेगरीज में इसी बंदे ने, ताइची उन्होंने कैटेगराइज किया था, which made them easier to eliminate, identify and eliminate from the process or product, right? Then later on what happened, an eighth waste was recognized and added in the early 2000s. So the waste that was waste of human potential or waste of talent, or we can say non-utilized resource और underutilized resource, ये 8वां एक waste और ऐड हुआ इसमें। तो फाइनली करंट waste are totally 8 waste. So what are those 8 waste? So here I have prepared one mnemonics to remember. What is it? Input I have already explained you, and the another is downtime. So ये ट्रिक है, बेसिकली ट्रिक है छोटी सी जो आपको इजी टू रिमेंबर होंगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस टिम्बोर्ड और टिम्बोर्ड्स और डाउन टाइम। तो टिम टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन, बी डब्ल्यू फॉर वेटिंग, ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, एस फॉर टी फॉर डिफेक्ट, और एस फॉर स्किल अंडर यूटिलाइज्ड, एंड देन डाउन टाइम। सो आई हैव बाइफरकेटेड इट। इट इज वेरी इजी। अब मे बी आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री में याद पढ़ा हो 12th में कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हु वॉट डिस्कवर दम, तो एक वहां भी एक ट्रिक थी, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय थॉमसन, ईट पर। प्रोटॉन डिस्कवर बाय रदरफोर्ड, नाच। न्यूट्रॉन डिस्कवर बाय रदरफोर्ड, चैडविक। तो अभी तक याद है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको किसी भी चीज को याद करने में, राइट? सो नाउ टॉक अबाउट द डिटेल्ड information or description about these wastage. So what is, we will discuss about the all 8 type of waste. What is it? So first we start from transportation. So unnecessary movement of product, machine or material within a process, that called transportation waste. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अननेसेसरी मूविंग और हैंडलिंग ऑफ पार्ट, टाइम वेस्ट होगा अगर अननेसेसरी हैंडलिंग करोगे, और एक वेस्ट और क्रिएट हो जाएगा, डिफेक्ट, अननेसेसरी हैंडलिंग करने से। पुअर लेआउट, यहाँ भी टाइम वेस्ट होगा, राइट, और एक्सेस मूवमेंट होगी, एक वेस्ट और ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ। मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, इक्विपमेंट मूविंग विद नो पार्ट्स, ये एग्जांपल है बेसिकली जहां पे एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन है जो एक वेस्ट है। रॉ मटेरियल बैच साइज नॉट मैचिंग प्रोडक्शन बैच साइज, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इसका रूट कॉज क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द रूट कॉजेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज इट? आइसोलेटेड प्लेस, लार्ज लॉट प्रोडक्शन, पुअर प्रोसेस प्लानिंग विद अननेसेसरी स्टेप्स, single skilled operative workers sitting to perform operation, need for a transportation system is assumed. So what are these? These are the causes. How isolated places will correlate to this? For example, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ, राइट?
वेट अ मोमेंट, आई विल शो यू वन थिंग। यस, फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ, राइट, और आपने मटेरियल रख दिया है यहाँ, तो व्हाट विल बी देयर हियर टू, यहाँ से आपको यहाँ तक लेके जाना है इसको, मे बी आपके 12 सेकंड कंज्यूम हो गए हैं। तो ये 12 सेकंड क्या है, ये वेस्टेज है। अगर ये स्टोरेज आपने यहीं की होती इसकी पास में, तो क्यों टाइम लगता है, ये काम 1 सेकंड में हो जाता, तो आप 11 सेकंड सेव कर पाते ना, राइट। तो ये देन लार्ज लॉट प्रोडक्शन, लार्ज लॉट प्रोडक्शन आपने करके रख दी, तो उसको ले जाने के लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगी ना, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन जो नेसेसरी नहीं थी। बैचेस में करते तो बैचेस वाइज जाता रहता। तो इस तरीके से ये सारे कॉजेस रिलेट करते हैं जहां पे ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो रहा है, और वो ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू द वेस्ट, कह सकते हैं मुदा को, राइट। देन व्हाट आर द एक्शन विच कैन एलिमिनेट दीज ट्रांसपोर्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यू शेप में बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से सारी चीजें पास में ही रखी होंगी, ज्यादा दूर ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो प्रोडक्शन, इंस्टेड ऑफ बैच वाइज प्रोडक्शन वी कैन मेक अ फ्लो प्रोडक्शन लाइक इन अ सिंगल डे, इंस्टेड ऑफ दिस की कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोडक्शन कर दिया, फिर यहाँ पे बना दिया दूसरा, फिर यहाँ बना दिया, ऐसे करके तो क्या हो रहा है, स्मूथ नहीं है प्रोडक्शन। यहाँ पहले यहाँ इकट्ठा होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर यहाँ आ जाएगा। यही अगर फ्लो में होता तो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट बच जाता। मल्टी स्किल्ड ऑपरेटर, मिल्कमैन कॉन्सेप्ट, मिल्कमैन कॉन्सेप्ट यू मे हर्ड, लाइक व्हाट इज इट। सो इट इज बेसिकली, आपने देखा होगा जो मिल्क वैन रहती है, कलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर एंड गिव टू द वन कस्टमर। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक सप्लायर से एक वैन लेके जा रही है मटेरियल, तो 8 सप्लायर है, 8 कंपोनेंट 8 वैन में आ रहे हैं, या 8 सिमिलर कंपोनेंट 8 वैन में कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर हम मिल्क वैन कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। देन स्टैंडिंग टू परफॉर्म ऑपरेशन, हायर यूटिलाइजेशन रेट एंड कानबान और फुल प्रोडक्शन। So these are the basically method. Then we talk about the inventory. It is also another waste. यहाँ पे कम टाइम के साथ साथ एफर्ट और मनी, मनी बेसिकली बहुत बड़ा कंस्टेंट हो जाता है यहाँ, जो ब्लॉक हो जाती है। तो क्या है, एक्सेस मटेरियल एंड प्रोडक्ट आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, ऑल्सो इनसफिशिएंट प्रोडक्ट एंड मटेरियल आर प्रोसेस्ड। तो एक्सेस मटेरियल मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक्सेस प्रोडक्ट मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ब्लॉक है। मान लो आपकी मार्केट में डिमांड है 5 पीस की, फॉर एग्जांपल, एंड यू प्रोड्यूस 500 पीस। सो यू इन्वेस्ट, मान लो एक पीस को बनाने के लिए 1 रुपया लग रहा है, यू इन्वेस्टेड 500 पीसेस, बट व्हाट यू गेट इन रिटर्न ओनली 5 रुपी, दैट 495 इज ब्लॉक्ड ड्यू टू दिस एक्सेस इन्वेंटरी। तो इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट। एग्जाम्पल इसका कैसे पता करोगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर, इस तरीके से पाइल ऑफ कर लिया, एक्सेस स्टॉक हो गया, ठीक है। स्टॉक पाइल ऑफ फिनिश गुड, आरएम का एक स्टॉक एक्स्ट्रा हो, या फिनिश गुड बना के ज्यादा रख लिया, या मंगा रॉ मटेरियल मंगा के ज्यादा रख लिया। हाई डब्ल्यूआईपी जो वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा सेमी फिनिश्ड गुड पड़ा है। एक्सेसिव रैकिंग एंड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस स्पेस, एक्सेसिव हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो ये एग्जाम्पल है इन्वेंट्री के जो बेस्ड है। देन What are the causes of this inventory? Acceptance of inventory as normal, मतलब इन्वेंट्री को आपको समझो मत, एक नॉर्मल समझ लो कि ठीक है ऐसे चलता है। पुअर इक्विपमेंट लेआउट, पता ही नहीं है कि कौन से प्रोसेस में कितना बना पड़ा है, डब्ल्यूआईपी इंक्रीज हो गई, आप स्मूथ नहीं है। अगर आपने कम बनाया तो एक रिस्क लग रहा है कि अगला प्रोसेस स्टॉप ना हो जाए। लॉन्ग चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम ज्यादा है तो आप सोच रहे हैं कि एक बार में बैग बना के रख दो उसको, फिर नहीं तो चेंज ओवर करने में टाइम लगेगा। तो डिफेक्टिव पार्ट, लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम, अप स्ट्रीम प्रोसेस टू फास्ट फॉर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। पता चला कि ए बी सी देर आर 3 प्रोसेस, सो ए प्रोसेस प्रोडक्शन इज टू फास्ट, बी प्रोसेस प्रोडक्शन इज लेस। सो व्हाट इज हैपनिंग, A process is producing 500 in 1 hour, and 2 is only producing B process is only producing 100 pieces per hour.
So that 400 piece become inventory for that B process. So that is what, that is high inventory in WIP, right? Then large lot production, anticipatory production, एज्यूम कर लिया कि दिवाली आने वाली है, इतने तो बिकी जाएंगे, करके रख ली प्रोडक्शन, पता चला वो बिकी नहीं। इस तरीके से प्रोडक्शन स्पीड नॉट अलाइन टू द डिमांड डिमांड है हमारी 5 पीसेस की बना, और बना रहे हैं हम 100 पीस पर के पेस पे, 100 पीस पर डे के पेस पे, तो 95, व्हाट इज 95, दैट दो 95 विल बी कंसिडर एज इन्वेंट्री excess material. How to eliminate that? Regulating the flow of production, streamline, value stream mapping we can do. Then production leveling, and by using the Heizunka methodology. Heizunka एक अलग methodology है, Japanese methodology. I will give you separate presentation on this. If you want to know about this, then you can comment me. And the same quick changeover operation using SMED. SMED is another one more methodology. Single minute exchange of die. So it is another big topic. Give you the separate presentation on this as well. Then pull production using the Kanban. That is another one more activity which enable the pull system. So for this also I will give you another presentation. And then the very important line balancing. So that is also another big topic. Need one separate presentation. If I will explain all these methodologies, so it will take lots of hour to explain you, and you also will not digest all the things in one day. So till that time you can explore these methodology by self and can make your doubts. Then we will, you can comment me whenever I deliver the video on these methodology, right? Then next is motion. How, what is it? Unnecessary or repetitive movement of the people within a process. It is it is also a waste, another waste we can say. Example इसका कह सकते हो कि looking for tool and material. 5S मेंटेन नहीं है, पता ही नहीं है आपको टूल कहाँ रखा है, मटेरियल कहाँ रखा है, आप ढूंढ रहे हो उसको इधर उधर, क्या है वो अननेसेसरी मूवमेंट है। अगर आपने आइडेंटिफाई प्लेस पे रखा होता तो आपको मिल गया होता। डबल हैंडलिंग, टर्निंग, बेंडिंग, आपको कोई भी पार्ट उठाने के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये वर्क स्टेशन है, राइट, और आप यहाँ पे काम कर रहे हो, राइट, पता चला आपको उठाने के लिए रॉ मटेरियल आपका यहाँ रखा है, तो आप यहाँ से मूव करके इसको ऐसे लेके जा रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट हो गई। या मान लो रॉ मटेरियल आपका यहाँ रखा है, तो आपको टर्न होना पड़ रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है, ये सब हमारी मोशन में जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग पता चला कि ये फॉर एग्जांपल ये आपका वर्क स्टेशन है, ये आप यहाँ बैठे हो, पता चला आपको मटेरियल यहाँ से उठाना है, तो आपको अपने हाथ यहाँ लेके जाने पड़ेंगे, इसे उठाओगे फिर आप यहाँ लेके अपना काम करोगे, तो क्या है ये अननेसेसरी मूवमेंट है, अनइजी फील होगा, अनकंफर्ट फील होगा, वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें, एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं, राइट, टाइम ऑल्सो वेस्ट हो रहा है। देन causes of motion, process are not aligned and result in motion overhead, low employee morale, instability in operations, sharing of machine and tools, isolated operation, poor work layout. Poor work layout का example I have already given you, right? So undeveloped skill, increase in staff or worker hours, work standard are not in place, right? So these are the basically causes for this motion related waste. So what are the action for this? Increase operator awareness about motion during an operation, create a shape cell layout of equipment, gradually switch to flow production, increase the training, make standardization thorough, and separate tool at each workstation. So these are the action through which we can eliminate these wastes. So guys, if you are not getting any point, so you can ask me through comment section, right? Don't hesitate to ask me. Then the another waste is waiting. What is it? The people have to wait to start the next step in a process. मतलब there are two processes, A process and B process. For example, A process and then B process, right? So what is happening? A process taking
12 seconds to finish their task, and this B process taking 24 seconds to finish their task. So what will happen? This it a and this then another is C. It is also taking 12 seconds. So what will happen? Uh, this here on this location, huge inventory will be there, right? And at this position, what will be? Uh, this person will wait for the process. So this process or operator has to wait for next 12 सेकंड. क्यों? क्योंकि ये 24 सेकंड ले रहा है, ये केवल 12 सेकंड में ही अपना काम फिनिश कर दे रहा है, तो इसको 12 सेकंड वेट करना पड़ेगा ना, जब तक ये अपना काम 24 सेकंड में नहीं कर पाएगा. तो ये जो टाइम यहाँ लग रहा है 12 सेकंड का, ये बेसिकली वेटिंग टाइम है, तो ये भी वेस्टेज है. It also should be eliminated. So what are those example? I will give you some example for this. So waiting for the material resource, waiting for the maintenance, waiting for the tool change, waiting for quality check, machine operator inactivity during cycle support to resolve issues. Also people waiting for a machine to complete its cycle, waiting for the next station. So ये सब waiting time, waiting related wastage है. So इसके causes basically क्या है? Unplanned machine downtime, right? Long setup and machine changeover time. लॉन्ग सेटअप हो या लॉन्ग चेंज ओवर टाइम हो, वेटिंग कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. इनएडिकेट स्टाफिंग हो, राइट? रिक्वायरमेंट है 5 की, है वहाँ पे 3, तो वेट करेगा, एक को काम फिनिश करके तो दूसरे को करेगा, करने वाली कंडीशन बनेगी. लैक ऑफ कम्युनिकेशन टूल, टाइम कैसे, फॉर एग्जांपल मशीन कोई ब्रेक डाउन है, जो मेंटेनेंस का स्टाफ वहाँ है नहीं, तो टूल वहाँ कुछ है नहीं, तो वो वेट ही करेगा कि बंदा कब आएगा, कब उसको सही करेगा. Poor work layout, absence from work, poor planning and process documentation, less resources. So these are the basically culprit, or we can say causes for this waiting related waste. Then how to eliminate this? Standardization workflow, create use of sale again, that kind of sale, so that the workflow can be, production flow can be smooth, and make resource available. Standardization instruction, training and processes, developing multi-skilled human resource, right? So these are the basically action to eliminate this waiting related waste. Then next is overproduction. So what is it? Production that is more than the needed or before it is needed. मतलब ऐसी प्रोडक्शन जो जरूरत के हिसाब से बन गई या जरूरत नहीं थी उससे पहले ही बना के रख दी, वो सब ओवर प्रोडक्शन में काउंट होगा. सो एग्जांपल इसके देता हूँ. लार्ज लॉट प्रोडक्शन, चल जाना था काम 500 के बैचेस से, बना दिया 5000 का बैच इन अ डे, तो क्या है? वो ओवर प्रोडक्शन है. एंटीसिपेटरी प्रोडक्शन, जरूरत थी सेल होनी थी 50 पीसेस की, बना दिया 500 कि भैया दिवाली आएगी, ईद आएगी तो सेल बढ़ेगी, इस लॉजिक के साथ. तो ओवर प्रोडक्शन एंड दैट इज ऑल्सो ओवर रनिंग एंड अनस्टेबल प्रोसेस, ओवर स्टाफिंग और टू मच इक्विपमेंट. सिंपल सी बात है, एक मशीन है, राइट? एक लाइन है, 10 बंदे लगने चाहिए 500 पीसेस को बनाने के लिए, और आपने 20 लगा दिया, उनका साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया. साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया तो यूनिट पर आवर इंक्रीज हो जाएंगे, ओवरऑल पर डे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. तो वो क्या है? ओवर प्रोडक्शन है. मशीन दैट टर्न आउट पार्ट टू क्विकली, किसी मशीन का साइकिल टाइम रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डिमांड 40 सेकंड की, बट किसी मशीन का साइकिल टाइम कर रखा है 12 सेकंड पर रन कर रहा है प्रोडक्शन मशीन. सो व्हाट इज इट? इट इज आल्सो cause of overproduction, will lead to overproduction, right? So let's discuss about the causes of overproduction. What are those? Poor production planning, long setup or machine changeover time, lack of communication, access raw material. All these 4 causes are related to the overproduction. So how we can eliminate them? Proper planning should be there, line balancing need to be done, one piece flow should be there, full production should start by using Kanban, quick chamber changeover operation should be there, level production, small lot or mixed production, right? So these are the basically action to eliminate that. Then talk about the over processing. What is it? Doing more work or higher quality work than your customer require. ज्यादा काम करना या
ज्यादा गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ काम करना, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ वर्क और एक्टिविटीज विल कंसिडर एज ओवर प्रोसेसिंग। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर कंपनी, क्योंकि तुम ज्यादा करोगे, कस्टमर ने मांगा ही नहीं है, कस्टमर उसका आपको क्यों देगा, पे ही नहीं करेगा वो, पे नहीं करेगा तो वेस्ट हो गया कंपनी के लिए, राइट। तो व्हाट आर द एग्जांपल, रॉन्ग चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, कैसे, अब ये बोलोगे रॉन्ग चॉइस ऑफ इक्विपमेंट कैसे लीड करेगा ओवर प्रोसेसिंग को। फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरा कटिंग करता और फिनिशिंग करता, ऐसा टूल मेरे को चाहिए था, बट गलती से मैं ऐसा लाया कि उसमें एक ही ऑप्शन है कटिंग का। तो जो मेरे को वो फिनिशिंग करनी है, वो दूसरा प्रोसेस ऐड ऑन करना है, वो क्या है, ओवर प्रोसेसिंग ही है। अगर मैंने पहली बार में टूल सिलेक्शन सही से कर लिया होता, तो दैट नॉट रिक्वायर्ड ना एट लेटर स्टेज। देन फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन, useless operation, unbalanced processes, regular follow up without any reason, without any logic, all these are over processing। bad definitions of customers need, ठीक है, कस्टमर रीड ही आपने अपने हिसाब से बना ली, वो एक्चुअल में कस्टमर नीड है या नहीं है पता ही नहीं है आपको, तो दैट विल आल्सो लीड टू ओवर प्रोडक्ट, ओवर प्रोसेसिंग, excessive setup or downtime, right, all these are the example। so how, what are the causes, inadequate study of process, inadequate study of operation, non-suited jigs, incomplete standardization, material are not suited। so अब कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, inadequate study of process, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 प्रोसेस चाहिए थे, बट आपने स्टडी की नहीं, आपने लाइन सेटअप 4 के हिसाब से कर दिया। अब 5 करना तो 5 भी है, 5 के लिए आप अलग से एफर्ट ऐड ऑन करोगे ना, तो कि व्हाट इज दैट, दैट इज ओवर प्रोसेसिंग। सेम फॉर ऑपरेशन, ए बी सी डी ई एफ ऑपरेशन होने थे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट आपने सही से स्टडी की नहीं उसकी, आपने डिफाइन केवल ए बी सी डी ही कर पाए, ई एफ के लिए क्या होगा, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा अलग से, क्या हुआ, वो भी ओवर प्रोसेसिंग हुआ। पहले ही अगर आपने स्टडी में ले लिया होता, तो जरूरत नहीं पड़ती ना अलग से एफर्ट देने के लिए। ऐसे ही नॉन सूटेड डिजिट, मटेरियल आर नॉट स्टडी, जरूरत थी, पता चला कि ए मटेरियल की ले आए आप बी, बी से पता चला आपका प्रोडक्ट में जो स्ट्रेंथ और जो प्रॉपर्टीज आपको फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए थी, वो आपको मिल ही नहीं रही है, क्यों, आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया मटेरियल का। तो ये उसमें फिर क्या है, आपको ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, और जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थी पड़ रही है आपको, क्या है वो सब ओवर प्रोसेसिंग है। हाउ टू इलिमिनेट देम, more appropriate process design, review of operation, improvement of jig using automation, mean to say Jidoka, you can say, thorough standardization, promotion of value analysis and value engineering techniques. So these are the basically methodology or action which we can took to overcome these causes, which will eliminate the or reduce the over processing waste. Then very important waste, that is defect, and very common and well known defect, we can say. Everyone who is working is in industry, everyone knows about it, no matter they have read it out about this 3M or not. So that is what, rework, scrap, or incorrect information in the first time that lead to the rejection or defect, or a part which is deviated from its design standard will consider as a defect or defect। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्क्रैप, रिवर्क और रिजेक्ट, रिकॉल्स। आपने कई बार सुना होगा मार्केट में, मारुति ने इतना गाड़ियां रिकॉल कर लिया, होंडा ने इतनी गाड़ियां रिकॉल कर ली, व्हाट इज इट, शौक थोड़ी नहीं है उन लोगों को रिकॉल कर रहे हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट उनको पता चला रिस्क असेसमेंट के टाइम पे, रिकॉल किया, उसको रेक्टिफाई किया, देन अगेन दे डिलीवर टू द मार्केट, हर कोई करता है, बट ये अवॉइड होना चाहिए, मास रिकॉलिंग नहीं होनी चाहिए, ये इट इज अ वेस्ट, ह्यूज वेस्ट फॉर अ कंपनी, from the brand value aspect and the quality and the money and effort, everything totally waste. And then delay due to the defect, transportation due to defect, right? So causes of defect, see, I have noted down few basic causes here, but it is not limited, there is a broad
range of causes for defect. So what I have noted down, emphasize on downstream inspection, no standard for inspection work, omission of standard operation, material handling and transportation, operator error, lack of sufficient quality control processes, missing repair and documentation standard, undocumented design change, misunderstood customer requirement. पता चला कस्टमर ने मांगा था ये, आपने समझ लिया बी, बी बना के दे दिया, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कस्टमर ने तो आपसे ए मांगा था. What is that? All that product become NG, not good, right? So raw material not as per requirement. पता चला कस्टमर ने बोला था ग्लास फाइबर प्लस 20%, आपने उसको दे दिया ग्लास फाइबर प्लस 50%. So what is that? Customer will not accept it. They will reject and it become turns into the defect. So in this way, so how to eliminate them? Standard operation should be there. Mistake proofing devices should be there. Full lot inspection need to be done, which can ensure defect-free product shipping to customer. Flow production should be there. Building quality in each process. Elimination of need to pick up and set down pieces. Improvement of jig using human automation. Promotion of value analysis and value engineering. So these are few action which we can take to eliminate the defect or reduce the rejection rate. Then unused human talent as are skill underutilized. It is very important. Most of companies or organization not pay much attention to this, but it is a very danger based for any organization. What is it? Underutilized or inadequate teammates, talent, skill, or knowledge. For example, not tapping into and following up on the ideas and thought of the employees. What will happen? It will lead to this unused human talent. For example, कोई बंदा है, उसके पास अच्छे आइडियाज हैं, बट जो लीडर है, जो बॉस है, वो अपने आप में ही बिजी है, इंटरेस्टेड ही नहीं है वो अपनी टीममेट को सुनने में. क्या होगा? वो बंदा अपने आइडियाज को रख नहीं पाएगा उसके सामने, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा उनको यूज करके. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जो उसका इनोवेशन था, जो उसके थॉट थे, दैट्स टर्न्स इनटू वेस्टेज, राइट? क्योंकि वो यूज ही नहीं हो पाया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस? असाइन एम्प्लॉय टू रॉन्ग टास्क. एक एम्प्लॉय है, मान लो एक एम्प्लॉय है, हाउ कैन आई गिव यू एग्जांपल? हाँ, सपोज एक एम्प्लॉय है, उसकी कार चलाने में एक्सपर्ट, राइट? तुमने सोचा कार चला लेगा, चला ही लेता है तो ट्रक भी चला लेगा, बट ऐसा नहीं है ना, जमीन आसमान का अंतर है. आपने उठा के उसको ट्रक में दे दिया, क्या होगा? यूटिलाइज नहीं कर रहे आप उसके स्किल्स को सही जगह. एक्सपर्ट तो वो कार कार रेसिंग में है, ट्रक चलाने में एक्सपर्ट थोड़ी ना है. tedious administrative work, lack of communication and communication tool, poor management, inadequate training, missing teamwork. So these all are the causes of unused human talent or skill underutilized. So how we can overcome this? Skill evaluation should be there. Most of companies ignore this thing, but it is very mandatory or it is very important for any team. If you are not doing skill evaluation, skill mapping, then it is very hard to grow your team or your team member. Because if you are not doing skill mapping, so you are not uh, able to identify their strength and weakness. If you are not able to identify their strength and weakness, then you cannot improve them or you cannot utilize well. So it is very mandatory. एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. आप स्किल वैल्यूएशन करोगे, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगी, तो आप बेस्ड ऑन वीकनेसेस उनको ओवरकम करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप ट्रेनिंग और एजुकेशन करोगे अकॉर्डिंग टू नीड्स. तो सब को रिलेटेड है. कनेक्ट विद एम्प्लॉइज. कनेक्ट ही नहीं हो गए, एम्प्लॉय के अंदर में फियर, एक फियर रहेगा उसके पास कि पता नहीं बॉस के पास जाऊंगा तो देन आई डोंट नो व्हाट ही विल थिंक और शी विल थिंक. So that kind of fear should not be there. You have to connect. If you are a good, you want to be a good leader, then you have to connect with the team. You have to discuss with them, keep interaction with them. Then only they will share their thoughts with you. So that is very important. Then
identify hidden skills. Every people have their different set of skills. So sometime क्या होता है कि आप समझ ही नहीं पाते उसके अंदर कौन सी ऐसी पोटेंशियल है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिडन स्किल को आइडेंटिफाई करो, जो मे बी हो सकता है कि आपका जो टीममेट है या आपका जो को वर्कर है उसके पास कोई अच्छी स्किल हो, बट वो शोकेस नहीं कर पाया आपके सामने, और आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, और बट वो वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो आइडेंटिफाई करो जो हिडन स्किल है। अगर इफ यू मे थिंक कि इट कैन बी इट कैन बी एड वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? then then up to this we discuss about the muda. Now I told you now 3M, so now we will discuss about mura. What is it? So mura is an any kind of unevenness, non-uniformity or irregularity. While often used mainly for material flow, it is also a problem in many other cases outside of the material flow. मटेरियल फ्लो के लिए ही लिमिटेड नहीं है, अदर प्लेसेस भी मटेरियल फ्लो के अलावा वहां भी मुरा हो सकता है। अनइवननेस या नॉन इन्फॉर्मिटी और इरेगुलरिटी कहीं भी, वो सब मुरा में कंसीडर होगी। एग्जांपल इसके देता हूं मैं। अनइवन कस्टमर डिमांड आ रही है, इन्वेंट्री स्विंग्स है, कभी ज्यादा हो जा रही है कभी कम हो जा रही है, क्या है ये? अनइवननेस है यहाँ भी। अनइवन प्रोडक्शन स्पीड और चेंजिंग प्रोडक्शन क्वांटिटीज, ठीक है। कस्टम मतलब प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल टीम है या प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंट्रोल टीम है, वो चेंजेस करे जा रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। अनइवन क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, इरेगुलर और इरेक्टिव वर्किंग रिदम, अनइवन ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कलोड। यू कैन सी दिस पिक्चर। इस बंदे के पास कुछ है ही नहीं, सारा इसके ऊपर लो चला गया, तो क्या है ये? अनइवननेस है। ये वेट अगर इसकी यहाँ की जगह यहाँ होता तो दोनों पे सेम वर्कलोड होता। तो ये एग्जांपल है अनइवन, अगर तुम देखोगे सही से तो मुरा का। तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर मुरा? पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ लाइन बैलेंसिंग, पुअर प्रोसेस फ्लो, प्रॉपर वर्क एलोकेशन। किसी को दे दिया ढेर सारा भर के काम, तो कोई बंदा मौज मार रहा है, क्या है वो? प्रॉपर वर्क एलोकेशन। तो कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? फॉलो हाइजून का। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाइजून का इज अनदर मेथोडोलॉजी। shortly I will give you one separate presentation on this topic. Need to do line balancing. Again, line balancing I have already told that also needs separate presentation. Streamline the process as per manufacturing process requirement. Work allocation और distribution as per skill. कहावत है ना, चाकू काम ताई को साजे और करे तो डंका बाजे। तो ये जिसको जो काम अच्छे से पता है उसको वो काम असाइन करो, तो वो उसमें परफॉर्म अच्छे से करेगा, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल सही से करेगा और इन टाइम करेगा। देन द थर्ड इज मुरी, दैट इज आल्सो नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी। व्हाट इज इट? मुरी इज ओवरबर्डन बियॉन्ड वन पावर। बोला ना, औकात से ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो बहुत ज्यादा ऐसे ही एक्टिविटीज, ऐसे काम करने में, वो सब मुरी में कंसिडर होते हैं। आप देख रहे हो इसकी पसीने निकले पड़े हैं इसको उठाने में। तो इट इज नॉट, बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मैन, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मटेरियल, मशीन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। हर किसी की अपनी लिमिटेशंस है ना, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है। अगर आप उससे ज्यादा दोगे तो वो ओवरबर्डन ही होगा। उसके लिए मशीन है, मान लो 300 यूपीएच, जनरली मैन्युफैक्चरर ने उसको डिक्लेयर किया है कि 300 यूपीएच निकाल, यूनिट पर आवर निकाल सकती है, 300 पीस पर घंटे बना सकती है। एंड देन यू आर मेकिंग एक्सेप्शनल और बियॉन्ड द लिमिट चेंजेस, reducing the cycle time beyond their limit. So what will happen? It will be a over stress at machine. Then what will happen? Breakdown will increase. ऐसे बंदों पे आप ज्यादा हिसाब से ज्यादा काम दे दो कि क्या होगा? बंदा बीमार हो जाएगा, ये माननी शुरू कर देगा। तो Mori should not be there. It is very important, so it should be removed from that
the process or from the organization or from system. So how you can identify that is Muri? Assigning work to an employee more than what he can do, he or she can do. एक बंदे की लिमिट है कुछ, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करने की, आपने उसको दे दिया एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा? ओवरबर्डन है। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अनसुटेबल पोस्चर और इनएडिकेटेड एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी काइंड ऑफ ओवरबर्डन हो जाता है, स्ट्रेस होता है आदमी का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 8 घंटे कोई चीज आपको झुक के नीचे से उठा के ऊपर रखनी है, तो ये एर्गोनॉमिकली सही नहीं है। ये आपको स्ट्रेस, आपका जो बॉडी पोस्चर है उस पर स्ट्रेस देगा बेसिकली, तो आपकी इफिशियंसी पे इफेक्ट आएगा। एक तरीके से बर्डन आपको लगने लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर मैं प्रोसेस डिफाइन कर रहा हूँ तो दैट शुड बी एर्गोनॉमिकली परफेक्ट। And unsuitable posture, and I have already explained. Demanding that supplier deliver what we want whenever we want it without providing a good or stable signal from our side. So it is also unrealistic thing. आप सप्लायर को बता ही नहीं रहे हो, कभी भी कुछ भी आप मांग ले रहे हो, और वो आप सोच रहे हो कि सप्लायर आपको अपोज प्रेशराइज कर रहे हो सप्लायर को कि भाई आई विल गिव यू द पेनल्टी और समथिंग, यू हैव टू पे और यू हैव टू डिलीवर दिस गुड और समथिंग. What is it? It is an overburden at supplier or any organization. It should not be like this. We have to avoid this. Running a machine more than its design speed. अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरर ने सर्टेन स्पीड उसकी डिक्लेयर कर रखी है, आप बियॉन्ड द लिमिट जाके उसमें चेंजेस कर रहे हो और फिर उसको इंक्रीज, तो क्या होगा? उस पर इम्पैक्ट आएगा। वही यहाँ पे बताया गया। सो व्हाट आर द कॉजेस? ओवर डिमांडेड, lack of training, lack of communication, lack of poor tool or equipment. So how to eliminate Muri? Map your team's workflow, train your teams properly and providing them with good tools and equipment. Create clear communication channel and practices. Create a standardized procedure. ये नहीं है कि प्रोसीजर ही नहीं है, आपने बोल दिया मुझे नहीं पता यार, करके ला कैसे लाएगा? क्या होगा उस पर? अल्टीमेटली आप प्रेशराइज कर रहे हो, दूसरी टीम का काम भी वो कर रहा है जो किसी और को करना चाहिए, और टीम और डिपार्टमेंट या और स्पेसिफिक जो डेजिग्नेटेड बंदा उसको करना चाहिए, बट आपने अपनी टीम क्लियर ही नहीं है आपका प्रोसीजर, तो स्टैंडर्डाइज करो प्रोसीजर को, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना चाहिए, तो जो आपका वर्क है वो बैलेंस रहेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द बेनिफिट्स ऑफ एलिमिनेटिंग द 3Ms। अभी तक हमने इतना सारा किया, इसके फायदे भी तो जान लें आखिर क्या है। जब हम 3M अगर हटा देंगे, देन द प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन, इट विल बी मोर efficient, efficiency will be more, then time will be saved, then product, it will be more productive. अभी हम जहां 300 निकाल लेते हैं 400 निकालना शुरू कर देंगे। If all 3M will not be there, then of course quality will be good, then all these three will turns into the money भी हमारी सेव होगी। जब बेस्टी ही नहीं होगा कुछ, तो लॉसेस नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स जो लॉसेस थे पहले वो कन्वर्ट हो गए मनी में, तो ये हमारे बेनिफिट है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस, वॉट एवर यू हैव कीप सो फार। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कुछ आपको लगा हो कहीं पे कुछ गैप लगे हो, बेटर होगा, यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स विद मी। maybe I have left some scope for improvement, so you can share with me, or if you have any doubt, then also you can share your thoughts in a comment box. I will try to give you the reply on that. And there is one more quote here, you can see, idea without action is nothing. देख रहे हो आप, छतरी तो इसके पास भी थी ना, अम्ब्रेला तो ये भी इनके पास भी था, बट ये नहीं यूज कर पाए, उसको डूब रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो, उसने एक छाते को उठाया और अपोजिट करके रख दिया, नाव बना दी उसकी। सो जो भी आइडिया है आप उसको एज्यूम करते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दो। स्टॉप ओवर थिंक, ज्यादा मत सोचो कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। इस पे भी मैं एक सेशन आपको दूंगा कि ओवर थिंकिंग कितनी हार्मफुल होती है किसी के लिए भी, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके करियर के लिए। इस पे भी एक अलग से मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा।
So guys, thank you so much. Bye bye, good night.